एट्थ क्लास का ये जोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, रिसोर्सेज टाइप्स एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। द नीड्स ऑफ मैन बिगैन विद इट्स ओरिजिन। दीज नीड्स वर लिमिटेड फॉर फूड, शेल्टर एट्सेट्रा ओनली इन द बिगिनिंग, बट विद द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड इट्स नीड्स आल्सो ग्रू अप। तो जैसे जैसे आदमी की डेवलपमेंट होती गई, उसकी ज़रूरतें भी ज़्यादा होती रही। पहले सिर्फ उसको फूड शेल्टर चाहिए था, बाद में उसकी ज़रूरतें और ज़्यादा होती गई। As it grew, the man started looking towards the surrounding for the fulfillment and use of natural resources like soil, water, trees, stones, etc. started. Man's increasing needs in today's world have gone limitless to the extent that he has to depend on various means. मैन की नीड इतनी ज़्यादा है कि उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतों पर डिपेंड करना पड़ता है आदमी को। These means are called resources. उन ज़रूरतों को बोलते हैं resources. These are natural man-made meaningful substances which fulfill man's needs are known as the resources. तो resources दो तरह के, एक natural और एक man-made. These resources fulfill man's specific objectives. In other words, the resources are such natural gifts which are very valuable for human beings. तो resources जो हैं वो वाले नेचर के गिफ्ट हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी होते हैं। ये रिसोर्सेज की डेफिनेशन है। द रिसोर्सेज में भी नेचुरल मैन मेड। मैंने आपको बताया रिसोर्सेज नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी। नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट, रिवर, मिनरल्स, सोलर एनर्जी, सीज, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। और इंपॉर्टेंट मैन मेड रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? मशीनरी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, ह्यूमन रिसोर्सेज एट्सेट्रा। रिसोर्सेज में भी क्लासीफाइड एज फिजिकल और नॉन फिजिकल। देखो पहले दो तरह के रिसोर्सेज बता दिए, एक नेचुरल है और एक मैन मेड है। नेचुरल में ये आते हैं जो मैंने बता दिए, ठीक है। और मैन मेड में देखो, नेचुरल में फॉरेस्ट, रिवर, मिनरल, सोलर एनर्जी, सीज, और मैन मेड में मशीनरी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, ह्यूमन रिसोर्सेज। ये मैन मेड है। लगे पता? अच्छा, अब रिसोर्सेज जो हैं वो दो तरह के हैं, एक फिजिकल है और एक नॉन फिजिकल है। ह्यूमन इंटेलिजेंस, नॉलेज एंड एफिशिएंसी, ये ह्यूमन रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज ए चेंजिंग कंसेप्ट विच मे एक्सपैंड और कंट्रैक्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। तो रिसोर्सेज जो है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे नॉलेज हमारी बढ़ती है या टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो रिसोर्सेज भी इंप्रूव होते हैं, चेंज होते हैं। As a coal or petroleum for the primitive man and aluminium before the invention of aeroplane for the modern man had little or no meaning. शुरू में एल्युमिनियम की इतनी महत्वता नहीं कोई जानता था, बाद में पता लगने लगा कि एल्युमिनियम से तो एरोप्लेन भी बनते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। Therefore we can say that the real development of resources lies in its efficient utilization. The development of all resources is dependent upon the development of human resources. Types. Natural man-made resources are of various types on the basis of life existence, availability, level of development, utilization. These resources can be divided into following type. तो resources की कौन कौन सी टाइप हैं? नंबर 1 biotic abiotic resources, developed potential resources, exhaustible and inexhaustible resources, soil land resources, marine mineral resources, human resources. ये resources की different types है, ठीक है। सबसे पहले biotic और abiotic resources. Biotic resources are those basic resources which originate from living things, जो living things से आते हैं। Approximately 85% of world's total food depends upon these biotic resources. Plants and other living creatures are included in this type of resources. जितने भी plant हैं या living creature हैं वो biotic resources हैं, ठीक है। These resources provide raw material for our industries. Coal and petroleum also included in the category of biotic resources as they are produced from plants and animals. Non-living products like minerals, water, etc., which are provided by nature are called abiotic resources. तो non-living products जो हैं वो abiotic resources है। Minerals are the base of our industry. If we do not use mineral with care, these will exhaust very soon. अगर हम minerals को अच्छी तरह यूज नहीं करते तो ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद developed और potential resources. Normally, the richness of the country can be judged from the resources it possesses. These resources may be available below or above the earth. For example, gold, silver, coal, petroleum lie inside the earth, whereas water, forest, solar energy, etc. lie over the earth. तो कई resources तो जमीन के अंदर हैं और कई अर्थ के ऊपर है। The resources which are used for some economic gain are termed as developed resources.
जो इकोनॉमिक गेन्स के लिए रिसोर्सेज होते हैं उनको हम डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल बट नॉट बीइंग यूज्ड और कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। लेकिन जो फ्यूचर में यूज हो सकते हैं, ठीक है, जो तो मतलब अपनी इकोनॉमिक गेन के लिए यूज होते हैं उनको डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलते हैं, और जो फ्यूचर के लिए यूज हो सकते हैं उनको पोटेंशियल रिसोर्सेज। रिवर्स डिसेंडिंग द माउंटेन्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज। When the water of these rivers is used to produce electricity, then the water is known as developed resources। ठीक है, रिवर वगैरह जो हैं जो माउंटेन से बहते हैं उनको पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं, और जब रिवर का पानी जो है उससे बिजली बनती है तो उसको डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। कोल लाइंग अंडरनीथ द अर्थ इज ए पोटेंशियल रिसोर्स, वेयर एज कोल विच इज बीइंग यूज्ड इज कंसिडर्ड एज डेवलप्ड रिसोर्स। जो कोयला ज़मीन के अंदर मिलता है उसको पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं, लेकिन मतलब उसको कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं ना फ्यूचर में, लेकिन जो कोयला हम यूज़ कर रहे हैं उसको डेवलप्ड रिसोर्स बोलते हैं। लग गया पता? Exhaustible, inexhaustible. The resources which are being depleted very fast because of the continuous and excess use are called exhaustible resources. As petroleum products are being used very very fast. तो जो रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, उनको एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, द टाइम इज नॉट वेरी फार व्हेन देयर विल बी शॉर्टेज और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज, देयरफॉर द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड वाइजली एंड केयरफुली। तो एक समय जब आएगा जब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जैसे पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, कोल खत्म हो जाएगा, इसलिए इनको हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए, केयरफुली यूज़ करना चाहिए। Inexhaustible resources, the resources which get renewed as we use them. For example, we are using solar energy, wind energy, water, forest, but these resources do not get depleted, rather these get renewed। लेकिन कई रिसोर्सेज जो खत्म नहीं होने, जैसे सोलर एनर्जी है, सूरज ने कोई खत्म थोड़े होने, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, इन रिसोर्सेज को बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर बीइंग मेड अवेलेबल कंटिन्यूसली, ये हमें कंटिन्यूसली अवेलेबल रहते हैं। सो उसके बाद सॉइल और लैंड रिसोर्स। सॉइल इज द स्मॉल अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट रॉक ड्यू टू इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर मैन, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड क्रॉप्स। सॉइल जो है प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करती है। सो दीज प्लांट्स and crops are very significant for human beings. Without plants, life of human beings is almost impossible. प्लांट के बिना तो ह्यूमन बींग्स रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम खाना वगैरह तो प्लांट से लेते हैं ना। द सॉइल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक सैंडी सॉइल होती है, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, लुवियल सॉइल, माउंटेनस सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती है, एट्सेट्रा। Man gives preference to fertile soil for growing crops. The areas with fertile soil are densely populated and are full of economic activities. तो आदमी जो है वो वाली सॉइल चुनता है जो फर्टाइल हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा खेती हो सकती है। लैंड का मतलब क्या है? लैंड मीन्स द अर्थ सरफेस वेयर इकोनॉमिक और अदर एक्टिविटीज आर कैरिड आउट। मैन हैड बीन यूजिंग द लैंड रिसोर्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। द लैंड रिसोर्स इज बीइंग यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री टू डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, tourism, etc. Man uses the land keeping in view the relief, slope, type of soil, drainage and its requirement. तो लैंड का भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसी तरह मरीन और मिनरल रिसोर्सेज है, उसी तरह ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। उसके बाद हमने देखना है कि रिसोर्सेज को बचा कर कैसे रखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सारा कुछ हम क्वेश्चन आंसर में भी डिस्कस कर लेंगे, ये जो सारा ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है।